عوامی مسائل اور ان کے حل کے لیے عوامی رائے اقتدار کے ایوانوں تک پہنچانے کے لیے اب تک کا خصوصی پروگرام عوام تک۔ میں ہوں اسلام آباد سے عامر شہزاد۔ اس وقت ہم کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے CDA ہاسپٹل میں موجود ہیں، جہاں پر معلوم کرنے آئے ہیں یہاں کی انتظامیہ سے اور مریضوں سے اور دیگر عملہ سے معلوم کرنے آئے ہیں کہ یہاں کون کون سی طبی سہولیات فراہم کی جاتی ہیں، اور جیسا کہ بتایا جا رہا ہے کہ یہاں پر جو لیبارٹریز ہیں اور دیگر ڈائگنوسٹک پروسیس ہے، تشخیصی جو مرحلہ ہے، وہ دیگر دونوں بڑے سرکاری ہسپتالوں سے کسی قدر بھی کم نہیں۔ یہاں کی انتظامیہ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا یہ صرف CDA کے امپلائیز تک ہی محدود رہے گا یا دیگر جو ہے عام عوام کے لیے بھی اس کی سہولیات جو ہے وہ مہیا کی جا سکیں گی، یا اس کے لیے کیا پلانز ان کے پاس موجود ہیں۔ آئیے جانتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بتائیے گا کہ CDA ہاسپٹل کی ریڈیالوجی میں کیا اسپیشل ایسے ایلیمنٹس ہیں جو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں گی کہ جو دیگر ہاسپٹلس کی نسبت بہتر جو ہے فیسلٹیز پرووائڈ کی جا رہی ہیں ریگارڈنگ ٹیسٹ اور ETC؟ ہمارے یہاں پہ جب بھی کوئی پیشنٹ آتا ہے تو اس کی جتنی بیسک گائیڈ لائن اور جو اس سے اوپر والی جتنی بھی ہم لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں وہ ہمارے پاس ساری فیسلٹیز یہاں پہ اویلیبل ہیں۔ فار ایگزامپل اگر کوئی پیشنٹ ایمرجنسی میں آتا ہے، اس کا فوراً فاسٹ اسکین کرنا ہے یا پھر ایکس رے کرنا ہے جس میں کوئی فریکچر یا سب کچھ رول آؤٹ کرنا ہے، تو وہ اس کو بیسک گائیڈ لائنس فوراً پرووائڈ ہوتی ہیں ٹائملی، جو کہ شاید باقی گورنمنٹ کے جو سیٹ اپس ہوتے ہیں یہاں پہ ٹائملی سب کچھ پرووائڈ ہو رہا ہے۔ اس کے علاوہ جب جو بڑے اسکینس آ جائیں جس کے اندر CT اسکین اور MRI ہو رہے ہیں، CT اسکین ٹرائی فیزک کنٹراسٹ ہو رہے ہیں، جس کے اندر کمپیریزن اسٹڈیز ہو رہے ہیں، کینسر کے پیشنٹس ہیں جو کہ کیمو ریڈیو تھیراپی پہ ہیں اور پھر ان کا ہر 6 منتھس بعد، ہر 3 منتھس بعد ان کا فالو اپ ہو رہا ہے، وہ یہاں پہ پراپر ہمارے کنسلٹنٹس جو ہیں ان کی ٹیم بیٹھتی ہے روزانہ اور ان پہ پراپر ڈسکشن ہوتی ہے ان کی ہر چیز پہ کہ ان کو فردر کیمو پہ ڈالنا ہے یا پھر ان کو ریگریس کرنا ہے جو بھی ان کے ٹیومرز ہیں۔ تو اس طرح پیشنٹس کو جو ایک بیسک فیسلٹیز ہیں اور جو ہائر لیول کی فیسلٹیز ہیں وہ سب یہاں پہ اویلیبل ہیں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ CDA ہاسپٹل میں پیشنٹ کو جو ڈائگنوسٹک پروسیس ہوتا ہے بیسک وہ مہیا کیا جاتا ہے اور ٹھیک طرح سے کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، اگر ہم پورے ہاسپٹل کو لیں، جیسے اگر میں صرف اپنے ڈپارٹمنٹ کی بات کروں تو ہمارے پاس تو پیشنٹ ریفر ہو کے آتے ہیں کہ کوئی پیشنٹ ہے، جیسے فار ایگزامپل کوئی پیشنٹ پریزنٹ ہوا ہے، اس کو پین ہوا ہے ایبڈومن میں، تو وہ ہمارے پاس ایمرجنسی میں بھیجتے ہیں، تو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ فوراً اسی وقت اس کا ایکس رے کریں، الٹرا ساؤنڈ کریں، جتنی ہماری ایبڈومنل ایمرجنسیز ہیں ہم اس کو رول آؤٹ کریں۔ اور اس کے علاوہ جو بیسک ساری فیسلٹیز ہیں وہ اویلیبل ہیں، اور پھر لیکن جو پیٹ اسکین ہوتے ہیں وہ پھر اس کے لیے نوری بھیجتے ہیں پیشنٹس کو۔ تو یہاں پہ ہماری تو یہی سب سے زیادہ کوشش ہوتی ہے، جتنے بھی ہمارے کنسلٹنٹ ڈاکٹرز ہیں، ہماری میم ہیں، کہ پیشنٹس کو جتنا ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم ان کی ہیلپ کر سکیں کہ وہ جتنی فیسلٹیز ان کو اندر سے اویلیبل ہے وہ اندر ہوں اور باہر ان کو کم سے کم ریفر کریں۔ کسی مرض کی تشخیص کے لیے سب سے جو بنیادی چیز ہوتی ہے وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، تو دیگر سرکاری ہسپتالوں کی طرح کیا CDA میں بھی ٹیسٹ جو ہے وہ باہر سے لکھ کے دیے جاتے ہیں، یا یہ جو مشینری آپ کے پاس موجود ہے اس سے مستفید ہوتے ہیں شہری؟ تھوڑا سا اس پر روشنی ڈالیں۔ جی بالکل ایسے ہی ہے کہ جی یہاں پہ جو ہے نا تمام ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور سب سے پہلے ایکس ریز ہوتے ہیں، تمام لیب کے ٹیسٹ بھی ہو رہے ہیں، اور بہت کم پیشنٹ جو ہے نا وہ باہر جاتے ہیں، اور یہاں پہ ہی تقریباً فیسیلیٹیٹ ہو رہے ہیں، اور CT اسکین بھی ہو رہے ہیں، الٹرا ساؤنڈ بھی ہو رہا ہے، اور تمام ٹیسٹ ہوتے ہیں یہاں پہ، پیشنٹ کو جو ہے نا فیسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ ٹیسٹ چونکہ مہنگے ہوتے ہیں تو نارملی دیکھا جاتا ہے کہ ڈاکٹرز یا اسپتال جو ہے وہ ریفر کر دیتے ہیں پرائیویٹ کی طرف، وجوہات جو بھی ہوتی ہیں، تو یہاں آپ کی کیا پرسنٹیج ہے کہ 100% کرتے ہیں سب کا جو پیشنٹس یہاں پہ آتے ہیں؟ جی کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ جی 100% یہاں پہ ہی ہونا، ٹھیک ہے جی، اور یہاں پہ ریفرل سسٹم بہت کم ہے کہ جی ڈاکٹر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جی باہر بھیجے پرائیویٹ کلینک پہ یا کوئی اس طرح کا کوئی سین نہیں ہے نا، اور تمام ڈاکٹرز تمام شعبے یہاں پہ یہ ایسے ہی ہے کہ جی یہاں پہ ہی ہوتے ہیں، پرفارم ہوتے ہیں، جو مشینری یہاں پہ اویلیبل ہے وہ یہاں پہ ہی ہوتے ہیں۔ ادروائز جو ہے CDA کے جو پیشنٹ ہے وہ جو یہاں پہ ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے وہ CMH یا اس طرح اکا دکا کوئی بھیجتے ہیں، ادروائز نہیں بھیجتے۔ لیب کے ٹیسٹ جو ہے تمام لیب کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور FNAC وہ یہاں پہ نہیں ہوتا تھا پہلے،
لیکن ہماری میم نے جو ہے ڈاکٹر شازیہ یوسف نے اور لیب کی جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے مل کے جو ہے یہ ایک FNAC کو یہاں پہ پرفارم کرنا شروع کیا ہے، اور وہ ٹیسٹ اب باہر وہ بھی نہیں جاتا ہے نا، جو کہ 15-20 دن بعد رپورٹ آتی تھی، لیکن اب وہ یہاں پہ ہی پرفارم ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ کہ جی یہاں پہ سٹاف بھی اچھا ہے، اور پیشنٹ کے ساتھ پیشنٹ کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ جی یہ میرے بہن بھائی ہیں، کیونکہ CDA کے پیشنٹ ہیں، بار بار آتے ہیں، اور ہم بھی ان کا خیال رکھتے ہیں، وہ لوگ بھی ہمارا خیال رکھتے ہیں، اور یہاں پہ اس طرح کا ماحول ہے۔ یہاں NGO-CT کا ایک خاص طرح کا ٹیسٹ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے، اور اس میں جدید سنا ہے مشینری یہاں آپ نے رکھی ہے، وہ کیا ہے؟ اینجیوگرافی کی بات کر رہے ہیں جی، اینجیوگرافی ہمارے ہاں ہو رہی ہے بالکل، اور سٹنٹ بھی جو ہے وہ جس پیشنٹ کو ضرورت ہوتی ہے اس کو باقاعدہ سٹنٹ پڑتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور ہمارے ہاں ادھر CT NGO بھی ہو رہی ہے نا۔ کوئی ایک آدھ ٹیسٹ ہوتا ہے جو آپ کی رینج سے باہر ہے، اس کے علاوہ باقی سارے ٹیسٹ آپ کرتے ہیں؟ تقریباً یہاں پہ سارے ہوتے ہیں نا، ٹھیک ہے جی، جو ظاہر ہے کہ جی جو پیٹ سکین ہے یا اس طرح کے جو جہاں پہ اویلیبل نہیں ہیں وہ باہر جاتے ہیں، وہ بھی پرائیویٹ کلینک پہ نہیں، وہ ریفر ہو کے باقاعدہ CDA ان کو پے کرتے اور باقاعدہ اس طرح ہوتے ہیں، ادروائز یہاں سے ریفر نہیں ہوتا ہے۔ فیس کتنی ہوتی ہے آپ کے اندازے میں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ چونکہ CDA نے پے کرنا ہوتا ہے تو فیس باقی ہاسپٹلس کی نسبت زیادہ ہو، یا ایفیشینٹ کہہ کے زیادہ فیس لی جاتی ہے؟ نہیں، اس بارے میں مجھے پتہ نہیں ہے کہ جی، میں فیس کے متعلق مجھے پتہ نہیں ہے۔ کیا جو جدید ٹیکنالوجی ہے وہ CDA ہاسپٹل میں یوز کی جاتی ہے؟ پرٹیکولرلی اگر بات کی جائے برین کے حوالے سے، مختلف جو امراض ہوتے ہیں دماغ کے، ان کے CT اسکین کے حوالے سے کس طرح کی سہولیات اور جدید مشینری آپ کے پاس موجود ہے؟ سر ہمارے پاس اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی موجود ہے، جو اس وقت ملک میں سب سے لیٹسٹ مشینیں ہیں وہ ہمارے پاس انسٹال ہیں، اور برین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں، CT برین پلین سے لے کے ہم CT اینجیوگرافی تک ہم پرفارم کر رہے ہیں، جس میں ہم طرح طرح کے کوئی انفارکٹ، کوئی کلاٹ، ہر چیز ہم اس میں دکھا سکتے ہیں، اور جو ہماری مشینری ہے یہ اسٹیٹ آف دا آرٹ ہے۔ گورنمنٹ سیٹ اپ میں اس طرح کی مشینری کم لگی ہوتی ہے، لیکن CDA نے ہمارے پاس یہ بہت اچھی مشینری پرووائڈ کی ہے، جس سے لوگ بہت زیادہ مستفید ہو رہے ہیں۔ کتنے جو ہے ہفتہ وار آپ کہہ سکیں کہ کتنے پیشنٹس آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں؟ اس میں بھی ہم تھوڑا منفرد ہیں، چونکہ باقی جو گورنمنٹ ہاسپٹلز ہیں وہ زیادہ لمبا ٹائم دیتے ہیں، لیکن ہماری چونکہ میڈم کی اور ED صاحب کی ہے کہ ہم پیشنٹ کو جلدی سے جلدی اکاموڈیٹ کرتے ہیں، اور جو سیریس پیشنٹس ہوتے ہیں ہم ان کو فل کرتے ہیں، ان کو ٹائم نہیں دیا جاتا، ہم ان کو فوراً انٹرٹین کرتے ہیں، اور ایون دو کہ ہم رات کی شفٹ میں بھی CT اسکین کو پرفارم کرتے ہیں۔ CDA کیتھ لیب کے انچارج کریم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ ٹیکنالوجسٹ ہیں سر، بتائیے گا کہ CDA کس طرح سے منفرد ہے، بالخصوص دل کے امراض کے لیے بتایا جا رہا ہے یہاں پہ کہ بہت ایفیشینٹ جو ہے وہ سٹاف بھی موجود ہے، اور ٹیکنالوجی بہت آپ کے پاس جو ہے وہ اپ گریڈڈ ہے اور اپڈیٹڈ ہے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں۔ جی سر، الحمدللہ سر، میں تقریباً 10 سال سے اس ہاسپٹل میں کام کر رہا ہوں، اور باقی ڈپارٹمنٹس کی طرح ہمارا جو اینجیوگرافی یونٹ ہے، جس کو ہم کارن اینجیوگرافی یونٹ کہتے ہیں، یہ بھی فنکشنل ہے، فلی فنکشنل ہے، ود ایفیشینسی فرام ہیومن ریسورس اینڈ ود ایفیشینسی فرام جو ہمارا انوینٹری ہے، اس حساب سے ایز یو نو سر کہ ہم تو صرف چونکہ انسٹیٹیوشنل ہاسپٹل ہے CDA، اور ہم صرف CDA امپلائیز یا ڈپینڈنٹس کو ہم کیٹر کر رہے، تو ہمارے پاس جب بھی سر کوئی پیشنٹ آتا ہے وتھ کارنیٹر ڈیزیز، جس کو ہم دل کی بیماری کہتے ہیں، تو تشخیص کا عمل شروع ہو جاتا ہے ایمرجنسی سے، جس میں ECG، ایکو اور بہت سارے ٹیسٹ ہیں نان انویزیو، لیکن وہاں سے جب پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے نان انویزیو سے کلیئر ہو کے کہ نہیں، اس کو تو ہم نے آگے کچھ پروسیڈ کرنا ہے فار اینجیوگرافی، یعنی کہ دل کی رگوں میں کچھ بیماری ہے، تو پھر ہم اینجیوگرافی اس پیشنٹ کو شفٹ کیا جاتا ہے سر، اور اس کے ہم اینجیوگرافی کرتے ہیں، یا ابھی بھی ایک اینجیوگرافی لگی ہوئی ہے۔ کل ہمارے پاس ایک پیشنٹ آیا جس کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تھا، CDA کے امپلائی تھا، انٹیریئر والیوم اس کو ہم کہتے ہیں، دل کی جو مین شریان ہے وہ بند ہو گئی تھی، وہ اٹیک کے ساتھ ریسیو ہوئے تھے ایمرجنسی میں، تقریباً کوئی 8:08 اینڈ 8:30 پہ ہمارے پاس وہ کیتھ لیب میں تھے۔ الحمدللہ اٹ واز اے ویری پرومپٹ رسپانس کہ ہم نے تقریباً 10-15 منٹ کے اندر اس کے اسٹنٹ کر دیے، اور اس کے ہارٹ کو ہم نے سروائیو کر دیا۔
इंस्टेड कि वो उसका हार्ट डैमेज होता और उसकी आर्टरी ब्लॉक हो जाती फॉर आवर्स या फॉर वीक्स फॉर डेज़, तो हमने उसको विदिन 30 मिनट रिस्पॉन्ड कर दी। जो कि हमें ईयर से कॉल आ गई है कि भाई एक आपके पास पेशेंट है 8:20 8:30 पे हमने उसको अल्हम्दुलिल्लाह स्टंट यहाँ पास कर लिया था इन 10 मिनट। तो इट वाज अ वेरी प्रॉम्प्ट रिस्पांस जो कि हमारे पास है। इसको हम कहते हैं प्राइमरी PCI, जो कि बहुत सारे कम हॉस्पिटल में होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब ये अप्रिशिएट कि हम CDA के एम्प्लॉइज़ को, उसके डिपेंडेंट्स को विदिन नो टाइम अल्हम्दुलिल्लाह उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है सर। आपने जैसा कि बताया कि आपका क्विक रिस्पांस है कि जानलेवा जो अमराज होते हैं, बीमारियाँ होती हैं, दीगर हॉस्पिटल जो है उनमें टाइम देते हैं 6 माह का, 1.5। तो आपका क्या प्रोसीजर है इसमें? एक्चुअली सर वो जो टाइम देते हैं ना, उनकी भी अपनी कोई लिमिटेशन है। जस्ट बिकॉज के देर जनरल पब्लिक हॉस्पिटल, उनके पास बड़ा फ्लो ऑफ पेशेंट्स होता है, तो विद लिमिटेड रिसोर्सेज वी अंडरस्टैंड। जैसे पेम्स है, पोली क्लिनिक है, या कोई और सरकारी हॉस्पिटल की मिसाल की हम बात कर लें, चूँकि जनरल हॉस्पिटल है वहाँ पर उनके पास बेड ऑक्यूपेंसी ऑलरेडी होती है, उनके पास बेड की स्पेस नहीं होती, फिर उनके पास बाकी जो रिसोर्स है वो सफिशेंट नहीं होते। हमारा चूँकि वंस अगेन आई रिपीट कि हमारा चूँकि इंस्टीट्यूशनल हॉस्पिटल है CDA, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो वर्क फ्लो नहीं है। सिर्फ CDA जो कि डिपेंडेंट है, हमारे पास एक लिमिटेड पेशेंट, ऑल्दो दे आर वेरी ह्यूज इन नंबर एज वेल। आजकल चूँकि डिपेंडेंट्स के हमारे जो पेशेंट नंबर बहुत बढ़ चुका है, लेकिन फ़िलहाल वी आर अल्हम्दुलिल्लाह कैपेबल टू कैटर ऑल द डिपेंडेंट्स एंड द फैमिली सो फार। तो हमें उस तरह का इशू नहीं है जिस तरह की जनरल पब्लिक हॉस्पिटल में, क्योंकि वहाँ पर अगेन वही पूरे सिटीज़ के अलावा, ट्विन सिटीज़ के अलावा कोई जहलम, कश्मीर, यहाँ वहाँ दूर दराज से लोग आते हैं, तो उनकी अपनी जो रिसोर्सेज है उसके मुताबिक दे आर डूइंग वेल। सर बताइएगा कि CDA हॉस्पिटल में जो इलाज का तरीक़ाकार है और इनकी खिदमात हैं, उनको आप किस तरह से देखते हैं? आप किस मर्ज़ में मुब्तला थे और किस तरह से इलाज? मैं तो वैसे CDA से रिटायर्ड हुआ हूँ जी। CDA में मैंने 30-35 साल नौकरी की है और पूरा पाकिस्तान फिरा हूँ, और मैं देखता हूँ कि जिस तरह हमारे CDA में और हमारे CDA के हॉस्पिटल में इलाज वगैरह या सफाई का इंतज़ाम है, इस तरह किसी अस्पताल में मैंने नहीं देखा। दूसरा, मैं इसका शुगर का पेशेंट हूँ और मैं काफ़ी अरसे से इलाज करा रहा हूँ। बड़ी अच्छी दवाई मिल रही है, उससे मुझे बड़ी सहूलत है और बड़ा अल्लाह का फजल है, हमारी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सहूलत है मज़ीद दूसरे अस्पतालों की बजाय। दीगर अस्पतालों में भी ज़ाहिर है कभी ना कभी आपका वास्ता पड़ा होगा। आप कितना फ़र्क समझते हैं दीगर सरकारी अस्पतालों की निस्बत जो है वो CDA बेहतर सहूलियात दे रहा है, हक दे रहा है? मैं ये कह रहा हूँ जी कि मुझे ये कई दफ़ा पेम्स में भी मेरा इत्तेफाक हुआ है, ये सामने पोली क्लिनिक में इत्तेफाक हुआ है, लेकिन मैंने कई मतलब ये तजर्बे से मेरा ये अंदाज़ा है कि जितनी सहूलत हमें यहाँ CDA में मिल रही है, इतनी दूसरी अस्पतालों में नहीं है। और ख़ासकर पेशेंट को अच्छे तरीके से देखा जाता है, दवाई तब्दील की जाती है, अगर न हो तो फिर दोबारा कोई मतलब है उसमें प्रॉब्लम नहीं होती। टेस्टों के हवाले से इनका दावा है कि हम जो है वो तकरीबन बड़े से छोटे तमाम टेस्ट जो हैं वो एम्प्लॉइज़ को फैसिलिटेट करते हैं। तो आपको आज तक सारे जो टेस्ट हैं वो करके दिए गए हैं, उनमें कोई इशू तो नहीं? मुझे शुगर का वैसे मेरा उसका क्या नाम है इसका MRI वगैरह, एक दफ़ा यहाँ से कोई मसला था वो पेट के लिहाज से, तो मुझे रेफ़र किया पिंडी में से मेरा वो हुआ MRI। और अगर जो टेस्ट यहाँ पे ना भी हो तो लिख के देते हैं, बाहर से सहूलत मिल जाती है, और यहाँ पे भी तकरीबन तमाम टेस्ट हमें अवेलेबल है। डायरेक्टर एडमंड CDA अस्पताल डॉक्टर सरताज अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा कि दीगर सरकारी अस्पतालों की निस्बत CDA अस्पताल किस तरह बेहतर है और किस तरह की सहूलियात जो है वो आवाम को बिलखुसूस CDA के एम्प्लॉइज़ को है वो यहाँ पे दी जाती है? अच्छा, इसमें CDA में हमारे पास 2 किस्म के, एक तो जो हमारे CDA इंटाइटल पेशेंट हैं तो उनको भी हम सर्विसेज दे रहे हैं, और जो नॉन इंटाइटल है इस्लामाबाद की दीगर रिहायशी, उनको भी हम इमरजेंसी सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। और जो OPD और IPD की सर्विसेज है वो बहुत नॉमिनल प्राइसेज है, जो गवर्नमेंट अप्रूव प्राइसेज है उनमें प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे पास दोनों किस्म के पेशेंट्स आते हैं। हमने रिसेंटली जो अपने इमरजेंसी अपग्रेड की कि हमने ट्रायज सिस्टम किया है कि जहाँ पे आपको आइडेंटिफाई कर सके कि कौन से पेशेंट को आपने जल्दी ट्रीटमेंट देने और कौन से पेशेंट को हम डिले कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे स्पेशलिटी है जो इस्लामाबाद के दीगर अस्पतालों में मौजूद नहीं है, वो हमने ऐड किए लास्ट 3 ईयर से, जिसमें पीडियाट्रिक सर्जरी है, जिसमें न्यूरो सर्जरी है, स्पाइन सर्जरी हमने ऐड की है, प्लास्टिक सर्जरी, वेस्कुलर सर्जरी, और इस तरह एंडोक्राइनोलॉजी, ये सुपर स्पेशलिटी है। और इनके हमने सुपर स्पेशलिटी ट्रेनिंग भी CPSP से रजिस्टर करवा के हम जो नए डॉक्टर्स आ रहे हैं उनको हम सुपर स्पेशलिटी में ट्रेन कर रहे हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल्स में हमने इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम शुरू कराया जो मेडिसिन का है। जो क्रॉनिक पेशेंट है, जिस तरह शुगर के मरीज़ है या हाइपरटेंशन के मरीज़ है, जो क्रॉनिक दवाइयाँ ले रहे हैं, या जिस तरह कैंसर के मरीज़ है,
وہ پہلے آتے लाइन में लगते थे, डॉक्टर के पास जाते तो एक लंबा प्रोसेस होता था. अब हम उनको 3 मंथ्स की मेडिसिन दे रहे हैं. हमने क्रॉनिक ओपीडी उनके लिए इस्टेब्लिश की है जिसमें हम 8 से 10 डॉक्टर्स बिठाए हुए हैं. उनका सारा डेटा मौजूद होता है. वो आके सिर्फ अपना जो MR नंबर है वो बताते हैं और उसी तरह उनकी मेडिसिन रिपीट हो जाती है. इससे फ़ायदा ये होता है कि ये जो जहाँ पे स्पेशलिस्ट बैठे होते हैं ये बेचारे भी उसी लाइन में लगते हैं क्योंकि इसमें मेजॉरिटी है एल्डर पेशेंट्स की. तो वो बेचारों को बहुत वेट करना पड़ता था. अब वो वेट ख़त्म हो गया और इससे दूसरे मरीज़ों को फ़ायदा ये है कि इस बीच में जब ये मरीज़ बैठे होते थे खुदा न खास्ता कोई सीरियस पेशेंट है वो निगलेक्ट हो जाता है. अब वो निगलेक्ट नहीं होता. हमारे जो मेन ओपीडी में उसमें बर्डन अच्छा खासा कम हुआ है. इसके अलावा हमने जो हमारे वर्किंग डॉक्टर्स हैं, नर्सेज है या जितने भी फीमेल स्टाफ है, सबसे बड़ा मसला ये होता था कि जब उनके बच्चे अप टू 2 ईयर्स या 3 ईयर्स छोटे होते थे, मजबूरी होती थी उनको ड्यूटी को बीच में छोड़ के जाके उनको फीड कराना. हमने उनके लिए डे केयर सेंटर इस्टेब्लिश किया हुआ है. तो अब जितने भी डॉक्टर्स हैं या जितने भी बाकी फीमेल स्टाफ है वो अपने बच्चों को साथ लाते हैं और वहाँ पे हमने ट्रेन स्टाफ बिठाए हुए तो वो उनको ट्रेन करते हैं. इसके अलावा हमने अपने लेबॉर्ट्री का सिस्टम अपग्रेड किया है कि वहाँ पे काउंटर पे आके क्यू सिस्टम हमने लगाया हुआ है. तो आपको झगड़ा नहीं करना पड़ता कि ये मेरा नंबर आ गया या उनका नंबर आ गया. वो अपना टोकन लेते और वहीं पे बैठ के उनके सारे टेस्ट हो जाते हैं. एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर CDA हॉस्पिटल इस्लामाबाद डॉक्टर नईम ताज साहब हमारे साथ मौजूद हैं. इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने चार्ज जब संभाला तो CDA हॉस्पिटल में कौन सी रिफॉर्म्स लाई हैं और CDA अब किस हद तक जो है वो दीगर सरकारी अस्पतालों के बराबर जो है वो इलाज मुआलजे की सहूलियात फराहम कर रहा है. सर बताइएगा कि CDA हॉस्पिटल जो है वो कुछ अर्सा कबल तक समझा जाता था कि सिर्फ़ और सिर्फ ये CDA का ही हॉस्पिटल है और आम जो दीगर शहरी हैं वो यहाँ ना रुक करें तो बेहतर है, लेकिन अब उसके जो है ना वो बरक्स नज़र आ रहा है और यहाँ पर जो है अब कुछ रिफॉर्म्स भी नज़र आ रही हैं. वो थोड़ा सा हमें बताइए. जी बहुत मेहरबानी जी, आपने एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ एक आज इस पे तवज्जो दी है. कैपिटल हॉस्पिटल जी बड़ा पुराना हमारा हॉस्पिटल है जो कि शुरू में एक हॉस्पिटल था, डिस्पेंसरी थी जो अपग्रेड हुई थी, फिर इसमें कुछ फैसिलिटीज़ हुई थी मगर उसकी जो फैसिलिटीज़ थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी. तो ग्रेजुअली हम इसको इम्प्रूव करते गए. मगर जब लास्ट 1 ईयर से जब मैंने अक्टूबर 2024 में इसका चार्ज संभाला कैपिटल हॉस्पिटल का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उससे पहले मैं 20 ईयर से यहाँ हेड ऑफ सर्जरी डिपार्टमेंट में काम कर रहा था और मुझे फिर इन्होंने एडिशनल चार्ज इसका एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का दिया. तो उसके अंदर हम काफ़ी सारी रिफॉर्म्स लेकर आए हॉस्पिटल में जो कि पेशेंट्स के लिए बहुत बेहतर है और मैं इसको कंसिडर करूँगा कैपिटल हॉस्पिटल के इस वक्त ये वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है इन ट्विन सिटीज़ ऑफ रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद, जो कि पहले किसी गिनती में नहीं था मगर इस वक्त मैं आराम से कह सकता हूँ कि ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है और सबसे बेहतर हॉस्पिटल है पिंडी इस्लामाबाद में. रिफॉर्म्स हमने इसमें सबसे पहले ये लाए हैं कि जी हमने बहुत सारी स्पेशलिटीज़ इसमें इंट्रोड्यूस कराई. पहले इसमें बेसिक्स होती थी, सर्जरी, मेडिसिन, गायनी, पीड्स, ऑर्थो, ये सारी. अभी जो कैपिटल हॉस्पिटल है विदिन जब मैंने चार्ज संभाला है तो हमने यहाँ पहले कोई कार्डिक सर्जरी हमने शुरू की है. कार्डिक सर्जरी में रेगुलर बाईपास कार्डिक बाईपास सर्जरी शुरू हो गई है CDA हॉस्पिटल में, जो कि 1-1.5 साल से रेगुलरली हम इस पेशेंट मंडे को यहाँ कार्डिक बाईपास सर्जरी होती है. उसकी जो माशाल्लाह बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं. उसके बाद हार्ट के पेशेंट्स के लिए हमने ये किया कि यहाँ कार्डिक स्टेंटिंग शुरू हो गई है. हार्ट की स्टेंट, हार्ट अटैक का पहले पेशेंट आता था मैं रेफ़र करना पड़ता था डिफरेंट और टर्शरी हॉस्पिटल्स में, मगर अभी यहाँ हम 200 से ज़्यादा पेशेंट्स को हम कार्डिक स्टेंटिंग हम कर चुके हैं. तो ये एक उसमें है. उसके अलावा हमने स्पाइनल सर्जरी यहाँ शुरू हो गई है. स्पाइनल सर्जरी जहाँ मोरों के ऑपरेशन थे वो यहाँ पहले नहीं थे, वहाँ हम रेगुलर हो रहे हैं. 200 से ज़्यादा उसकी सर्जरीज हो चुकी है. नी रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट है वो 107 से ज़्यादा उसके ऑपरेशन हो गए. जनरल सर्जरी में हम लोगों ने 3000 से ज़्यादा सर्जरीज की हैं मेरी सुपरविजन में और अल्लाह का शुक्र है सारी बहुत सक्सेसफुल रही है. हमने यहाँ ओबेसिटी वीक कंडक्ट कराया है. ओबेसिटी वीक होता है जो मोटापे की सर्जरी का ऑपरेशन जो मैं खुद भी करता हूँ और मेरे साथ जो दूसरे सर्जन हमारे डिपार्टमेंट में वो करते हैं. ओबेसिटी वीक हमने 2 कंडक्ट कराए हैं और पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम गैस्ट्रिक बाईपास जो वेट रिडक्शन ऑपरेशन है वो यहाँ हमने CDA में 2016 में किया था और उस वक्त से लेके अभी तक हम उसकी 9 वर्कशॉप करा चुके हैं. तो इस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी आई है. फिर हमने काफ़ी सारी वर्कशॉप्स कंडक्ट कराई हैं CDA हॉस्पिटल में. वर्कशॉप ये है कि हमने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पूरा मंथ ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस हमारे सर्जिकल डिपार्टमेंट में जो डॉक्टर्स
डिफरेंट स्कूलों लोगों की एजुकेशन के लिए वो किया है, डायबिटीज़ की अवेयरनेस के लिए किया है, हेपेटाइटिस सी की अवेयरनेस के लिए किया है, स्मोक के लिए हमने वॉक या कंडक्ट कराई है जिसमें चेयरमैन साहब, मेंबर साहब वो भी शामिल थे और उनके कहने पे ये सारी हम चीज़ें कर रहे हैं। उसके बाद हमने हॉस्पिटल की एंट्रेंस है 11, 22 पहले हॉस्पिटल में होती थी, इनको शिफ्ट कर दिए बाहर ताकि एक्सपेंड हो जाए हमारा हॉस्पिटल। तो एंट्रेंस का गेट जो ट्रैफिक फ़्लो है वो बेहतर है हॉस्पिटल के। इसके बाद ऑपरेशन थिएटर्स में कुछ रेनोवेशंस हुई हैं और इसके सामान जो गैजेट्स वगैरह हैं वो। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जो एलपी के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो हमने किए हैं, मेडिसिन की कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट किया है, फूड का कॉन्ट्रैक्ट किया है और सीटी स्कैन या जो नॉन फंक्शनल थी उसको हमने फंक्शनल करा दिया। अभी कोई पेशेंट बाहर रेफ़र नहीं होता सीटी स्कैन के लिए। और अभी जो फ्यूचर है हमारा, हम ये चाह रहे हैं कि इसको हम कैशलेस और पेपरलेस सिस्टम को इंट्रोड्यूस करें, हर चीज़ इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम पे हो और जनरल पब्लिक के लिए इसको ओपन किया जाए सिटी हॉस्पिटल को, क्योंकि जब इतनी ज़्यादा स्पेशलिटीज़ और इतने हाईली क्वालिफाइड हों तो एक आम पब्लिक में उनको भी एक्सेस हो। उसके लिए चेयरमैन साहब ने हमें दिया है टारगेट, इस साल हम उसमें भी वर्क कर रहे हैं। सिटी हॉस्पिटल की रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में हम मौजूद हैं, जहाँ डॉक्टर आफ्ताब साहब से पूछते हैं कि कौन कौन सी फैसिलिटीज़ यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं जो बाकी हॉस्पिटल्स की निस्बत बेहतर हैं या उनसे अच्छी हैं। डॉक्टर साहब बताइएगा कि दीगर सरकारी अस्पतालों की निस्बत सीडी हॉस्पिटल जो है वो किस तरह से, ख़ासकर जो टेस्ट का मामला होता है उसमें बाहर भेज दिया जाता है, टेस्ट की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती, आपके पास कौन कौन से टेस्ट की अवेलेबिलिटी है? हमारे पास या रेडियोलॉजी में जो है, डायग्नोस्टिक रेडियोलॉजी में सिटी स्कैन होते हैं, एमआरआई होते हैं। सिटी स्कैन में भी फिर कंट्रास्ट स्टडी आते हैं, उसमें सीटी एब्डोमेन पेल्विस ट्राइपेजिक सीटी आते हैं। इस तरह एमआरआई में हम करते हैं यहाँ पे, जिसमें एब्डोमिनल पेल्विस ब्रेन एमआरआईज आते हैं। हमारे पास एक्सरे और इसके साथ हम अल्ट्रासाउंड की भी फैसिलिटी दे देते हैं। हमारे पास जो जितने भी पेशेंट आते हैं हम कोशिश करते हैं कि वो बाहर रिफर ना होए, यहाँ पे सारी फैसिलिटेट करते हैं। कितने परसेंटेज जो आपके पेशेंट्स हैं वो टेस्ट के लिए बाहर जाते हैं, क्या परसेंटेज होगी आप? नहीं, बहुत कम होते हैं परसेंटेज की, सब एक दो पेशेंट बाहर जाते हैं, बाकी सब इधर फैसिलिटेट करते हैं, एकोमोडेट करते हैं सारे पेशेंट को। जो बड़े बड़े स्कैन होते हैं, एमआरआई, सिटी स्कैन, फ्लोरोस्कोपी इसमें भी आ जाती है, सारे हम इसको प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। डॉक्टर साहब क्या समझते हैं, यहाँ जितनी अपडेटेड मशीनरी और एफिशिएंट आपका काम हो रहा है, आप क्या समझते नहीं हैं कि सीडी एम्प्लॉइज़ के अलावा भी आम पब्लिक को यहाँ से सहूलियात जो है मुयसर होनी चाहिए ताकि वो फ़ायदा उठा सकें? इसके लिए हम एक प्लान कर रहे हैं कि हम सोशल मीडिया और इनको जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इन्हीं के थ्रू आवाम तक मैसेज पहुंचाए, क्योंकि हमारे पास हर किस्म की स्पेशलिटी मौजूद है। जो सीटी स्कैन या जो एमआरआई, जो टेस्ट या जो सर्जरी आपको लाखों में होती है, वहाँ यहाँ पे थाउजेंड्स में होती है। जिस तरह बाहर से सीटी स्कैन 15-16 हज़ार का करते हैं, हमारे जो CDA में वो 3-3.5 हज़ार का होता है। इसमें CDA का भी फ़ायदे और इसमें उन पेशेंट्स का जो ज़्यादा वो अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए भी फ़ायदे हैं। तो हम आपके चैनल के थ्रू जो इस्लामाबाद के दीगर अवाम है उनको हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपको नॉमिनल प्राइसेस पे यहाँ सर्जरी भी और यहाँ पे जो बाकी लैब टेस्ट है या जो रेडियोलॉजिकल टेस्ट है वो नॉमिनल प्राइसेस पे अवेलेबल है। लेकिन इसके लिए अवेयरनेस की ज़रूरत है और हमने भी जो सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फ्रंट मीडिया, इस पे हमने ये अवेयरनेस करनी चाहिए ताकि आम आवाम तक ये मैसेज पहुँच सके। हमारी जो इमरजेंसी की सर्विसेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो तमाम के लिए, उसमें इंटाइटल नॉन इंटाइटल नहीं है। चूँकि ये CDA से मुंसलिक है और इलाक़शुदा है, CDA का ही हॉस्पिटल है, इसलिए एक तासुर है जैसे कि आपने बताया है कि ये CDA एम्प्लॉइज़ के लिए ही है। तो आप कोई ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार करने का सोच रहे हैं या ऐसा प्लान है कि ताकि आम पब्लिक को भी इसका पता चल सके कि ये सिर्फ CDA एम्प्लॉइज़ का नहीं है, ये दीगर के लिए भी सहूलत का बाइस बन सकता है ये हॉस्पिटल? हमने रिसेंटली जो चेयरमैन साहब के अप्रूवल से हमने एक प्रपोज़ल बनाया हुआ है कि हमारे जिस तरह DHS है जो हमारे CDA के अंडर ही आते हैं, उनके जो सेक्टर्स में डिस्पेंसरी है हम उनको फंक्शनल करा के हम अपने लैब सर्विस कम से कम कलेक्शन पॉइंट वहाँ पे बिठा के और अपने डॉक्टर्स को बिठा के, ताकि जो लोग एक सेक्टर में जो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं उनको दूर G8 और इधर उधर जाना पड़ता है, तो हम क्योंकि हमारे पास जगह है, स्पेस है, स्टाफ भी है, तो हम वहीं पे कलेक्शन सेंटर और अपने जो OPDs है या नर्सिंग होम है वो फंक्शनल करा के
वहाँ पे पहले जो फर्स्ट चेकअप है वो हो और वहीं से जो उनके सैंपल है और वो चीज़ें कलेक्ट होकर CDM आए। इससे दो फ़ायदे होंगे, एक तो पेशेंट को डोर स्टेप पे वहाँ पे करीब उनको फैसिलिटीज़ मिलेगी, दूसरा फ़ायदा CDA को होगा कि वहाँ से रेवेन्यू जनरेट होगा, मरीज़ को भी फ़ायदा होगा, जो टेस्ट बाहर से 1000 रुपये का होता है उनको 100-200 में अवेलेबल हो जाएगा। CDA अस्पताल के अफसरान बाला का कहना है कि जिस तरह से CDA एम्प्लॉइज़ को ये अस्पताल बेहतर और काबिल कदर और क्वालिटी की तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहा है, इसी तरह ये प्लान में मौजूद है कि मुस्तकबिल करीब में ये आम पब्लिक के लिए भी खोला जाए और जिस तरह से दीगर 2 सरकारी अस्पतालों की निस्बत ये अपनी बेहतर परफॉर्मेंस दे रहा है, इसी तरह आम आवाम के लिए ये परफॉर्मेंस जो है उनको भी मुहैया होनी चाहिए और इसके लिए प्लान मौजूद है। देखते रहिए अब तक का खुसूसी प्रोग्राम आवाम तक।